I'm okay last, but I don't know if that ain't no grace on the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words and say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Now that I'm all I never got anyone to love me. I'll be incompetent. Mental health is confidence. Strength and some honesty. So I'm not here to see it. That's for you to take away. I can play a million mind games, but it's not a sin. Something biological, something that is typical. Bring it on and let you go. Think yourself unstoppable. Use your irresponsible. But now it's possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing it, dreaming I got for 7 pages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been doing it all, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I'll never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I feel like and I believe that our confidence makes and our personality makes who we are today. Thank you everyone. I hope you will enjoy this session. Thank you. Good morning to all. My name is Mirza Far. I am 18 years old and I have a family of 4. My dream is to explore the world, but in this I will face total hurdles. But I will not fear of that. I will face them and achieve my dream. That's all about me. Thank you. Good morning everyone. I hope everyone is enjoying the event. I am Anshri and I am pursuing BBA from Kamal Institute of Higher Education and Advanced Technology. My hobby is to catch every single moment of my life, like clearing the count of these treasures and butterfly and explore the world. Thank you. Good afternoon everyone. Respected teachers, honorable guests and my special friends. I am Anuj Khanna, pursuing BCS from Kamal Institute of Higher Education. I am very confident on my words. I am a very mega science vice mate, approximately going in researching and exploring the world. Thank you from my side. Jai Shri Ram. When saying we place on every sentence of school, not everyone I Ashka, pursuing BCS from Higher Education and Advanced Technology. I have completed my schooling from Williams Common School and my hobbies are exploring mythology. At last I would say a real example of foreign example. मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है. Hello, honorable present here. Myself Tanvi Sharma, and I am pursuing BCA from Karahi. I am also a dog lover. With each step, the Sharmagar trains are unveiled with confidence, grace, and unbreakable aura. Thank you.
My name is Yash Rathi and I am studying BCA from Kite और हम यूपी वाले लड़के हैं। रनवे पे एंट्री मारते हुए मस्ती और स्टाइल दोनों ही भरे हुए राठी ने किया सबको दीवाना, देसी ट्विस्ट फिल्मी अंदाज, यही है राठी का राज, जो राठी दिखाएगा अपना अंदाज। थैंक यू। Good morning everyone. So welcome namaskar. I am Karishma Dey. I am listening from and I have completed my schooling from Kolkata. I am working listening songs and everything. Very good afternoon, sir. Our chairman, sir, Dr. V.P. Tandon, sir, has reached. Please put your hands together, sir. We welcome you, sir. किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किरदार ऐसा रखो कि जब पर्दे गिरे तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आज यंग भारत वर्ल्ड के खास सेगमेंट टॉप मेंटोर में मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैंने ये लाइन आपसे कही है और वो है, उनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन। डॉक्टर वीपी टंडन के नाम से उन्हें लोग बुलाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग भारत वर्ल्ड में। इस समय कॉलेज का फेस्ट चल रहा है, यंगस्टर्स आए हुए हैं, कई सारी गर्ल्स ने बॉयज़ ने परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले तो अपने कॉलेज के बारे में बताइए सर, किस साल में इसकी स्थापना हुई थी और क्या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में थी, जहन में थी, जो आपने इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट की? देखिए, इस कॉलेज की हमने जो फाउंडेशन रखी और उसके बाद ओपनिंग कराई वो 2001 में कराई। उस टाइम जो दिल्ली की सीएम थी वो खुद आई थी और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया और उसके बाद इस कॉलेज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं उनको 90 से अबव % प्लेसमेंट मिल जाती है, 90% से ऊपर बच्चों को, और बच्चों का जो रिजल्ट है वो 100% रहता है। मेरिट भी बच्चों की आती है। और आज क्योंकि फ्रेशर पार्टी है बच्चों की, आज बच्चे जो हैं, न्यू बच्चे अपने जो सीनियर हैं उनसे मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैं उसके लिए फैकल्टी जो है कॉलेज की उसको भी अप्रिशिएट करूंगा। हमारे जो डायरेक्टर हैं यंग हैं, अनुदीप अरोड़ा जी, डॉक्टर अनुदीप अरोड़ा जी, उन्होंने भी बड़ा कॉलेज को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में कॉन्फिडेंस तो आता ही है,
और बच्चे जो है एक दूसरे से मिलकर, अपने सीनियर से मिलकर, वो ऐसी चीज़ों को जो उन्हें जो डर एक रहता था सीनियर्स का, वो भी दूर होता है ऐसी पार्टियों में। पार्टी तो शानदार थी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि तो कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि नाम ही काफ़ी अच्छा है, और किस तरह से बच्चों को जो है सपोर्ट करता है, बाकी के कॉलेजेस से खुद में कितना डिफरेंट है? देखिए, पहले तो बता दूं, ये कॉलेज जो है कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, मोहन गार्डन, न्यू दिल्ली, ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलेटेड है। और जितने भी उनके रूल रेगुलेशन हैं, जितने भी उनके सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट इसलिए इसके हैं क्योंकि फैकल्टी हमारी बहुत मेहनत कराती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, यंग डायरेक्टर डॉक्टर अनुदीप अरोड़ा जी, ये खुद अपने में एक शख्सियत है। इन्होंने बहुत इंटरनेशनल पेपर भी इन्होंने लिखे हैं और बहुत सारी अचीवमेंट है। तो वो इस तरह बच्चों को वो करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, उनकी प्लेसमेंट के लिए भी उनको आगे ले जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि 90% से अबोव बच्चे हमारे सर्विस में ही, जो हमारी ये जो 3rd ईयर होते होते ही प्लेसमेंट हो जाते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं वो हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में चले जाते हैं। आप सालों से इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कंपटीशन के इस दौर में जब हर कोई शख्स जो है एक दूसरे को बीट करके आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे में बच्चों में किस तरह का उन्माद देखने को मिलता है, किस तरह की कंपटीशन, और उनको स्टैब्लिश करने में आप किस तरीके का हाथ अपना आगे रखना चाहते हैं? तो एज ए मैनेजमेंट जो भी हमें रिक्वायरमेंट आती है डायरेक्टर से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें देनी है, वो रिकमेंडेशन के साथ उनको हम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये जो कल्चरल फेस्ट था, जो फ्रेशर्स पार्टी थी, इसके पीछे का जो पूरा कह सकते हैं कार्यभार जिस शख्सियत ने संभाला है, वो आज हमारे साथ यंग भारत वर्ल्ड के सेगमेंट में ही है। इनका नाम है अनुदीप अरोड़ा जी। काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। मैं काफ़ी देर से देख रही थी, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हुए, साथ ही बच्चों में जो एक एनर्जी लेवल था वो भी काफ़ी अच्छा कायम था। कितनी मेहनत करी सर इन सब के पीछे? First of all, thank you so much, ma'am, for inviting me on this particular channel. The main important thing is, the main pillar if we talk about, that is the Tandon sir as well as the Vandana ma'am, because they are the one who take care of everything for this particular institute. Because हम सिर्फ whatever जो भी problem हम लोग face करते हैं, तो we just approach to ma'am and sir so that we can reach to a great height. And we are working so hard with the candidate also, because these are the backbone of our industry and our main motive for this particular this kind of a functions, because we need that the student must grow up and they reach to a great height and they get a good placement from this particular college. इस तरह के फेस्ट जो होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे बच्चों के ब्रेनस्टॉर्म और बच्चों को जो है कितना ज़्यादा हेल्प आउट होता है, स्टडीज़ के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में उनको कितना ज़्यादा बूस्टअप मिलता है? Ma'am, as per my understanding, only the study is not important, because playing as well as the extracurriculum activities are most important for every kind of an candidate. So एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता है जब वो एडमिशन लेता है हमारे पास, तो वो एक ही चीज़ बोलता है कि कौन सी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप हमें पार्टिसिपेट करवाओगे। तो टाइम टू टाइम वी ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ एन इवेंट। नॉट ओनली दिस, वी ऑर्गेनाइजिंग फ्रेशर, फेयरवेल, लॉट मेनी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस विद लॉट मेनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, सो दैट दे कैन ग्रूम अप इन द अपकमिंग वर्ल्ड। पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग मिलता है सर? क्योंकि देखिए बच्चे तो आगे से आगे पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के फीडबैक्स, फॉलोअप्स क्या आते हैं जब आप पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं या पेरेंट्स आपसे इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो उनके किस तरह के इंटरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं? Maybe if we talk about the parents are so into these days, because they, as per the new NEP curriculum, so they want a new activities also. So every time we are conducting this kind of a things, so that पेरेंट्स भी हमें एक पॉजिटिव फीडबैक दें, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ एसोसिएट हों। जितना एसोसिएशन हमें उनके साथ मिलेगा, उतना हमारा इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा। आपके स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी हाई राइज जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि स्टडी के साथ साथ वो सिंगिंग, डांसिंग, हर एक एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। फिर भी एज अ डायरेक्टर आप उनको क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यंग भारत वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म से? मेरा संदेश उनके पास सिर्फ एक ही है कि वो ग्रो करें, गुड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के अंदर अपना एक स्पेस जनरेट करें, एंड कमल इंस्टीट्यूट के ब्रांड नेम को और ऊंचा लेकर जाएं। थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जिस तरीके से एक डायरेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्ट करना ही नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स की सारी चीज़ों पे नज़र रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना और आगे जो है करियर या फिर किसी भी जो है ग्रोथ के लिए डेवलप करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। फिलहाल इस सेगमेंट में मेरे यानी आकांक्षा के साथ सिर्फ इतना ही। कैमरामैन युवराज के साथ आप देखते रहें यंग भारत वर्ल्ड।